Hi everyone, good afternoon. So today we are going to cover the 25th class of the Indian Contract Act. And in this session, we are going to just cover up some specific sections of the Indian Contract Act, and we are just going to have a brief about the Indian Contract Act because it has been a long gap. We have studied the Contract Act, so I think it is good for us we will have a small recap upon the all the things we have learned, and then we can proceed further. Okay, so before proceeding further, I would like to inform you about the basic modes of the contract. What is contract, what is an agreement? These things we have already discussed before, I know, but in this class we are going to have a small recap upon each and everything we have learned in the last 24 classes. So this is, you can consider as a revision session for all the previous classes. Okay, so coming to the point of the interpretation clause upon section 2 of the Indian Contract Act, we have already understood that I have already made you understand about the things. Like when we are talking about the proposal, what is a proposal? And then we have discussed how a proposal becomes a promise. And then we have understood how a promise converts to an agreement. And then we have understood how an agreement converts to a contract. Okay. So when you will ask me, what is a promise? What is a proposal? First comes proposal. The proposal means there is a uh, there is someone's willingness to do something or to act upon something, not to do something or not to act upon something. That might be an implied action or might be a written action. Okay, so basically, let me make you understand in a very simple language in Hindi. मान लीजिए कि आपके पास 10 एकड़ का एक जमीन है, आप चाहते हैं कि वो जमीन को दूसरा कोई खरीद ले. ओके, सो व्हेन यू वांट समवन टू व्हेन यू वांट समवन टू बाय दैट लैंड, तो आप क्या करोगे? आप दूसरों को प्रपोजल दोगे कि मेरे पास 10 एकड़ का जो जमीन है, क्या उसको कोई खरीदना चाहता है? इज एनीवन वांट्स टू बाय द लैंड ऑफ 10 acres ऑफ माइन, एंड उसके बदले आई विल बी टेकिंग द 10 लाख ऑफ द रुपीज. आई एम जस्ट टेलिंग एन अप्रोक्सीमेट अमाउंट. ओके, तो आपके पास ये कंडीशन आप सामने वाले के सामने रखोगे कि क्या आप मेरा जमीन खरीदना चाहते हो? अगर चाहते हो तो उसके बदले आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा. सो दिस इज द कंडीशन पुट ओवर हियर कि देखो, अगर मेरा 10 एकड़ का जमीन आप खरीद रहे हो तो उसके बदले आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, एंड दिस इज योर प्रपोजल. आप यहाँ पे आपका जो साइड है उसको प्रपोज कर रहे हो. आप बता रहे हो कि ये मेरा चॉइस है, ये मेरा प्रपोजल है, मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज करें. सो दैट इज व्हाट वी कॉल द प्रपोजल. अकॉर्डिंग टू द लीगल लैंग्वेज अगर हम समझे तो ये लिखा जाता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that to other such act or abstinence, it is said to make a proposal. That means जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान के सामने अपना willingness to do something और not to do something और abstaining from doing something, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, हर चीज का दो तरीका होता है. इधर आप कुछ काम कर रहे हो, नहीं तो आप वो काम नहीं कर रहे हो. जब आप दूसरों के सामने ऐसा एक सिचुएशन रखते हो जहां पे आप ये बोलते हो कि मैं ये काम करना चाहती हूँ या मैं ये काम करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड द प्रपोजल. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का बात आता है, उसी का भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे पास 10 एकड़ का जमीन है, अगर आप उसको खरीदना चाहते हो तो बताओ.
दैट मीन्स आप यहाँ पे आपका जमीन बेचना चाहते हो, यू वांट टू सेल योर लैंड, ओके। सो दैट कम्स अंडर द एक्टिविटी जहाँ पे ये बोला जाता है व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, ओके। ये समझ में आ गया। दूसरा सिचुएशन को आते हैं। मान लीजिए आपके पास एक घर है जो कि मतलब जिसको आप बेचना नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट टू सेल द होम, ओके। बट आपके पास एक देर इज ए पर्सन हु इज वेरी पावरफुल पर्सन, तो वो क्या करता है, आपके पास आके आपको धमकी देता है कि आपको अपना घर बेचना पड़ेगा कम पैसे में। तो यहाँ पे आप उसको बोलते हो कि देखिए मैं अपना घर तो बेच नहीं सकती, सो आई वांट टू abstain माई सेल्फ फ्रॉम selling this house. Just 1 second. Yes, I want to abstain myself from selling this house. Okay. So यहाँ पे आ जाता है abstinence का बात, doing something और abstain from doing something. समझ में आ रहा है? Guys, there is a background noise. Just hold on 1 second. Let me close the windows. Sorry for the interruption. Actually, there was certain background noises, so I had to close the session. Yeah. So we are talking about the abstaining from doing anything, okay? So let me make you clear. When I'm talking about the abstinence of the action, that means मान लीजिए you don't want to sell your house, but someone is there who wants to buy your house. तो वो क्या कर रहा है, वो आपके पास आके आपको जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं चलो मेरे को तो ये घर खरीदना ही है, you have to sell this land, okay? So this kind of activity we are facing, okay? सो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप एक एडवर्टाइजमेंट देते हो कि देखो आई डोंट वांट टू सेल माय होम, बट ये इंसान मेरे साथ घर खरीदने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। अगर किसी ने इसको दूसरा घर का ऑप्शन देके या किसी भी तरीके से रोक सकता है, देन आई एम गोइंग टू पे 5,000 रुपीज टू दैट पर्सन, ओके। तो यहाँ पे आपका जो प्रपोजल है वो किस तरीके का प्रपोजल है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो आप अपना घर बेचना नहीं चाहते हो, बट मैटर ये है कि सामने वाला जो इंसान है उसको आपसे घर खरीदना है, इसीलिए वो आपको धमकी दे रहा है कि मेरे को घर बेच दीजिएगा। तो आप यहाँ पे अपना अब्सटेनेंस दिखा रहे हो, अपना नेगोशिएशन दिखा रहे हो कि नहीं मेरे को घर नहीं बेचना है। जब मैटर आपका हाथ से निकल जाता है, आपको लगता है कि वो सामने वाला इंसान मुझसे ज्यादा पावरफुल है एंड दैट पर्सन इज फोर्सिंग मी टू सेल द हाउस, तो आप उस सिचुएशन पे क्या करते हो, वहां पे आप अपना एक मतलब प्रपोजल आपके एक दोस्त के सामने रखते हो कि अगर तू किसी भी तरीके से उस सामने वाला इंसान को मेरा घर खरीदने से रोक सकता है, देन आई एम गोइंग टू पे यू द पे 5,000 ऑफ द रुपीज। तो यहाँ पे आपका दोस्त का जो एक्शन है वो किस लिए होगा, वो सामने वाला इंसान को घर खरीदने से रोकेगा। That person is going to stop the another person from buying the same house, okay? So this comes under the act of the abstinence, okay? So we are talking about the proposal. मैंने क्या बोला, there are two things about the proposal. First thing is about doing something and second thing is abstaining from doing something. डूइंग समथिंग के अंडर क्या आता है, डूइंग समथिंग के अंडर आता है कि जो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आप अपना घर बेचना चाहते हो, आप कुछ सामान बेचना चाहते हो, आप अपना जमीन बेचना चाहते हो, दैट कम्स अंडर द एक्ट ऑफ द डूइंग समथिंग। And when we are talking about the abstaining from doing something, that comes under the point जहां पे आपके सामने ये होता है कि नहीं आप घर बेचना नहीं चाहते हो, आप एक काम करना नहीं चाहते हो एंड इसी के बदले आप किसी को प्रपोजल दे रहे हो कि मैं ये काम करना नहीं चाहती हूँ, अगर तुम इस चीज को किसी भी तरीके से रोक सकते हो देन दैट इज गोइंग टू बी गुड, ओके। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका प्रपोजल के बाद, ओके। तो प्रपोजल मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप किसी इंसान को कोई चीज का प्रपोजल दे रहे हो, बता रहे हो
उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि आप ये काम करना चाहते हो, या आप आपके पास ये चीज है आप उसको बेचना चाहते हो, दैट इज टोटली कॉल्ड द प्रपोजल। जहां पे आप अपने तरफ से कोई प्रपोजल या फिर कोई भी चीज सामने वाला के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द प्रपोजल। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट कम्स अबाउट द प्रॉमिस। ओके, सो यू मे आस्क मी दैट प्रपोजल प्रॉमिस पे कब कन्वर्ट हो जाती है? The answer is very simple. When a proposal is accepted, it becomes a promise. Okay? So simple language में समझे तो जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो 10 एकड़ का जमीन है, आप अपना जमीन बेचना चाहते हो, तो आपके पास जो सामने वाला इंसान है वो आपसे जमीन खरीदना चाहता है, राइट? तो देयर इज द पॉइंट कि जब आप मेरे को आके ये प्रपोजल दे रहे हो कि अरे मैम, आपके मेरे पास जो 10 एकड़ का जमीन है, क्या आप वो जमीन खरीदना चाहते हैं? मैंने पूछा अगर मैं खरीदना चाहूंगी तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे मैम आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा और मेरे को पैसे की जरूरत है, तो आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, जमीन का सारा कागजात मैं आपके नाम पे कर दूंगी। सो दिस इज टोटली कॉल्ड, जहां पे आप मेरे को कुछ प्रपोजल दे रहे हो और मैंने बोला कि हाँ ठीक है भैया, मैं आपका जमीन खरीदने के लिए तैयार हूँ, एंड आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। मैं आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं जमीन के बदले आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। एंड एट दैट मोमेंट योर प्रपोजल कन्वर्ट्स टू ए प्रॉमिस, बिकॉज वहां पे भाई एक प्रपोजल के साथ मेरा मेरा कंसेंट जो है ना, वो भी अटैच हो जाता है। जब मैंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ वहां पे हाँ बोल दिया, अपना कंसेंट दे दिया, वहां पे आपका जो प्रपोजल होता है वो प्रॉमिस पे कन्वर्ट हो जाता है। कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस टू ईच अदर। जैसे कि आपके तरफ से प्रॉमिस रहेगा मेरे लिए कि आप मेरे को आपका जमीन देंगे, मेरे तरफ से ये प्रॉमिस रहेगा आपके लिए कि अगर मैं आपसे आपका जमीन खरीद रही हूँ, देन इन रिटर्न आई एम गोइंग टू पे यू 10 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द क्लियर सिनेरियो जहां पे आप मुझे कुछ दे रहे हैं एंड उसी के बदले मैं आपको कुछ दे रही हूँ। आप मेरे को 10 एकड़ का जमीन बेच रहे हैं और मैं आपको उसी के बदले 10 लाख रुपए दे रही हूँ। सो दिस इज लेना देना की बात बन जाती है। दिस इज द वाइस वर्सा। आप कुछ दे रहे हैं, मैं कुछ आपको दे रही हूँ, then the proposal becomes a promise. Clear? The next point comes, there is at the when there is an presence of the promise, then एक promise में ना दो लोगों का प्रेजेंस बहुत जरूरी होता है। So who are they? First is the promiser and second is the promisee. So who are these two persons? The person who makes the promise is called the promiser, and the person to whom the promise is made is called the promisee. जैसे कि आप मेरे को किसी भी तरह का प्रॉमिस कर रहे हो तो आप बन जाओगे प्रॉमिसर, और जिसी को आप प्रॉमिस करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कोई प्रॉमिस कर रहे हो, देन आप बन जाओगे, तो मैं बन जाऊंगी प्रॉमिसी। द पर्सन who makes the promise is the promiser, and the person to whom the promise is made is called the promisee. Okay, clear? Then coming to the next point, when then the question arises कि यहाँ पे promise का बात तो आ गया, promiser कौन है, promisee कौन है, वो हम समझ लिए, तो थोड़ा सेक्शन के बात कर लेते हैं। Section 2A of the Indian Contract Act speaks about the proposal. Section 2B of the Indian Contract Act speaks about the promise. 2A में हमने क्या पढ़ा? There should be the presence of the proposal. 2B में हमने क्या पढ़ा? Promise जब accept हो जाता है तब वो बन जाता है आपका, सॉरी 2A में क्या पढ़ा? Proposal. 2B में हमने पढ़ा जब कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, देन इट कन्वर्ट्स
टू ए प्रॉमिस। ओके, तो फर्स्ट हमने टू ए पे पढ़ा प्रपोजल की बात, टू बी में पढ़ा प्रॉमिस के बाद। देन आता है टू सी। टू सी में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द टू पर्सन्स एट द प्रॉमिस। द फर्स्ट वन इज द promiser who makes the promise, and second one is the promisee to whom the promise is made. Okay, clear? Then the next point comes under section 2E, that talks about the agreement. तो समझ में आया? 2A speaks about the proposal. 2B speaks that when a proposal is associated with the consent, it becomes a promise. Then 2C speaks about that at a promise there is the presence of the two parties. There is the promiser who makes the promise and the promisee to whom the promise is made. Then the part 4, it speaks, it explains who is the promiser, who is the promisee. It explains about this, section 2D. Then comes section 2E. It speaks about the agreement. So what is an agreement? When a promise is associated with the consideration, that becomes an agreement, and that is defined under section 2E of the Indian Contract Act. Okay, so you may ask me that, ma'am, what do we understand by the agreement? When a promise is associated with the consideration, it becomes the promise. Okay, so यहाँ पे question आएगा like how the promise is being associated with the consideration. Okay, तो यहाँ पे बात सिंपल सी है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि यू वांट टू सेल योर लैंड, अब तो 10 एकड़ सबका आपका जमीन है, आप उसको बेचना चाहते हैं। तो वहां पे जब मैंने वो जमीन को लेने के लिए अपना कंसेंट दे दी, हाँ दे दी, तो वहां पे क्या हो गया, वो जो प्रपोजल जो था वो प्रॉमिस पे कन्वर्ट हो गया। ओके, तो प्रॉमिस पे कन्वर्ट नहीं होने के बाद यहाँ पे प्रॉमिस क्या रहा, आप मेरे को 10 एकड़ का जमीन देंगे एंड उसके बदले मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगी। एंड यहाँ पे जो कंसिडरेशन है ना, वो कंसिडरेशन जब मैं आपको 10 लाख रुपया पे कर देती हूँ, देन वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। इधर मैं आपको 10 लाख रुपया दे देती हूँ, या फिर 10 लाख के बदले मैं अपना कोई सोना आपके पास बंधक रख देती हूँ, या फिर मैं कोई भी दूसरा चीज जो कि सिमिलर कीमत चुका रहा हो जमीन का, वो चीज मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। तो वहां पे क्या होता है, आई एम गिविंग समथिंग एज द कंसिडरेशन। मैं आपको किसी चीज का कंसिडरेशन अमाउंट रिटर्न कर रही हूँ, एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि हम दोनों के बीच में जो प्रॉमिस हो गया कि आप मेरे को वो जमीन बेचोगे, मैंने बोला कि हाँ मैं जमीन खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो वहां पे वो प्रॉमिस पे कन्वर्ट हो गया। बट जब प्रॉमिस पे एड ऑन हो गया 10 लाख रुपया एज द कंसिडरेशन अमाउंट, देन इट बिकेम एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बिटवीन whom? एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर। हु इज द सेलर? यू आर द सेलर हु इज सेलिंग the land of the 10 acres, and who is the buyer? I am the buyer who is buying the same land. Okay, सो यहाँ पे जो सेलर बायर का कंसेप्ट है ना, इट इज वेरी सिंपल। द मैटर इज कि आप मेरे को बेच रहे हैं एंड मैं आपसे खरीद रही हूँ, देन दिस इज सिंपली बिकमिंग एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स अदल बदल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप मेरे को वो जमीन ना बिना पैसे का दे देते तो वो गिफ्ट हो जाता, या फिर वो दूसरा कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में चला जाता है। बट यहाँ पे क्या आप अपना जमीन मेरे को मुफ्त में दान दे रहे हैं? क्या आप अपना जमीन मेरे को खुशी खुशी दे रहे हैं कि नहीं बेटा आप मेरा जमीन ले जाओ, आप उसको एंजॉय करो, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता? नहीं ना। आप अगर मेरे को जमीन बेच दे रहे हो तो उसी के बदले आपको भी मुझसे कुछ चाहिए, नो डाउट। You are having certain expectations from me in return of the land. अगर आप मुझसे जमीन खरीदना चाहते हो तो उसी के बदले आपको भी मेरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है।
So when you are selling something and in return I am paying you certain amount of the consideration, वो मेरा घर हो, मेरा जमीन हो, मेरा सोना हो, मेरा कागजात हो, मेरा पैसा हो, कुछ भी, which is amounting to the consideration amount of the land, if I am giving it to you, then that becomes an agreement. Okay, this comes under section 2E of the Indian Contract Act. Okay, so the next part, section 2E speaks about an agreement, and then section 2H of the Indian Contract Act, it speaks about the definition of the main thing, that is what is a contract. According to section 2E, an contract is an agreement which is enforceable by the law. Okay, so this is very simple. जहाँ पे हमने ये बात पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एक चीज होता है जो which should be enforceable by the law. तो बेसिकली देखा जाए तो जब किसी भी तरह का प्रॉमिस जो है या प्रपोजल है, जब वो एग्रीमेंट स्टेज तक आ जाता है ना, तब तक वहां पे काफी क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, दिस इज सम काइंड ऑफ द गिव एंड टेक एग्रीमेंट. यहाँ पे बिना कंसिडरेशन का चीज नहीं हो रहा है, एंड अगर कुछ हो रहा है तो उसी के बदले कुछ ना कुछ लेना देना हो रहा है. ओके, सो दिस वाज क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग. बट बात ऐसा है कि when we are talking about the contract, तो ये चीज हमको कंफर्म करना जरूरी होता है कि that contract should be enforceable by the law. The contract should be legally enforceable. कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है ना, उसको लीगली एनफोर्सेबल होना बहुत जरूरी है. So you may ask me that, ma'am, what do you understand by the legal enforceability of the contract? That means, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप मेरे को अपना जमीन बेच रहे हो एंड उसी के बदले I am going to pay you the 10 lakh of the rupees. So this is the agreement between you and me कि आप मेरे को 10 एकड़ का जमीन दोगे एंड उसके बदले मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी. बट यहाँ पे हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है, क्या वो लीगल है? द लैंड which is going to be sold, जिसको बेचा जा रहा है, क्या मेरे पास उस जमीन को बेचने के लिए प्रॉपर लीगल वैलिडिटी है? Am I the real owner of the land? ये चीज जानना फर्स्ट प्रायोरिटी है. दूसरा चीज, जो जमीन बेचा जा रहा है, इज इट ए डिस्प्यूटेड लैंड? ऐसा तो नहीं है ना कि उस जमीन के ऊपर पहले से ही कुछ केस चल रहा है. तो अगर जमीन के ऊपर पहले से ही कुछ केस चल रहा हो, देन तो उस जमीन का बेचना इम्पॉसिबल हो जाएगा. अगर मैं आपको पैसा दे भी दूंगी और आप मेरा पैसा लेके भाग जाओगे, आप मेरे को जमीन बेचोगे नहीं, क्योंकि आप मेरे को बोलोगे कि यार वो जमीन तो डिस्प्यूटेड है, डिले होगा, तो वहां पे मेरा पैसा तो गया ना. दैट इज एन इनजस्टिस टू मी, राइट? तो यहाँ पे ये चीज पहले क्लियर करना होता है कि द सेलर एंड द बायर, are they the legal person to sell the land and the buy the land? यहाँ पे जो दो लोग होते हैं ना, एक सेलर होता है और एक बायर होता है, तो ये दोनों लोग क्या जमीन खरीदने के लिए और बेचने के लिए सही इंसान है? आर दे रियली इंटरेस्टेड टू सेल द लैंड and to buy the land? And the second thing, the property which is being sold, or the property upon whom the agreement is made, जिस चीज को लेके, जिस प्रॉपर्टी को लेके एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, is that property have the legal enforceability to be sold or to be the part of an agreement? तो ये सारे चीजें को ऑब्जर्व करने के बाद जब ये डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ, ये एग्रीमेंट लीगली भी इन्फोर्सेबिलिटी कैरी करता है, एंड देयर इज द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज,
there is the enforceability of the law, agreement between the two parties with each other कि अगर आप मेरे को जमीन दे रहे हो तो मैं आपको उसी के बदले कुछ दे रही हूँ. So there should be the written agreement between the two parties क्या रहे. So in the simple language, an agreement which is enforceable by the court of law is called the contract. So this is the clear definition of the contract. What is contract? Contract is an agreement which is enforceable by the court of law. Okay. Then the next point, section 2J, it speaks about the void and voidable contract. Okay. So already we have discussed about it. Maybe I'm just trying to give you a small glimpse about that. So void contract is a type of contract which is totally void ab initio, जिसका कोई चांसेस पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं void contract. एंड voidable contract मीन्स जिसका पॉसिबिलिटी हो सकता है आगे जाके, दैट इज कॉल्ड ए voidable contract. void contract एंड voidable contract का एक दो छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आई हैव मेड एन एग्रीमेंट विथ यू कि चलो मैं आपको अपना घर बेचना चाहती हूँ, आई वांट टू सेल माय होम टू यू. एंड घर का जो मतलब अमाउंट है, उसका अमाउंट है 1 करोड़. घर बहुत ही लग्जूरियस है, तो मतलब आप अगर मेरे से घर खरीदना चाहते हो तो यू हैव टू पे 1 करोड़ ऑफ द रुपीज. ओके. तो आपने बोला कि ठीक है, मैं अपना घर लेने के लिए तैयार हूँ, जो भी है वी मेड एन एग्रीमेंट फॉर दिस. तो मान लीजिए देर इज द सम नेचुरल कैलामिटीज जिसके वजह से घर में आग लग गया. द हाउस इज बीन टोटली डिस्ट्रॉयड. घर एग्जिस्ट ही नहीं करता, घर तो पूरा जल के राख हो गया, मतलब घर पे आग लग गई, सारा सामान बर्बाद, सब कुछ बर्बाद. तो यहाँ पे is the agreement of selling and buying of the house is valid anymore? The answer is no, because यहाँ पे तो हम दोनों ने ये डील किया था कि हाँ मैं घर बेचूंगा, आपने बोला कि हाँ मैं घर खरीदने के लिए तैयार हूँ, बट द मैटर इज कि घर होगा तभी तो बेचा जाएगा ना. अगर घर पहले से ही कोई नेचुरल कैलामिटी से या आग से या बिजली से घर अगर जल के राख हो चुका है, घर का सामान बचा ही नहीं है, घर वो पुराना कंडीशन पे नहीं है जिसको बेचा जा सके, देन इज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द void contract. दूसरा एग्जांपल देती हूँ. ओके. जैसे कि मान लीजिए I have promised you, okay, that I will make a paint of yours. मैं मतलब हमारा फैमिली में मैं मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर आर्ट करती हूँ. ओके. तो मैंने आपको बोला कि ठीक है, मैं अपना जो भी है आई एम गोइंग टू मेक वन गुड आर्ट फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू मेक ए गुड आर्ट फॉर यू. मैं आपका एक बहुत अच्छा सा चित्र बना दूंगी, राइट. बट मैटर ये होता है कि जिस दिन मैं मैं आपका मतलब जो पेंटिंग है बनाने वाली थी, उसी का एक दिन पहले मान लीजिए एक्सीडेंट पे मेरा मौत हो जाता है. आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट आई एम गोइंग टू मेक ए पोर्ट्रेट ऑफ योर्स, है ना? नहीं है? क्लियर. बट मैटर ऐसा हुआ कि पोर्ट्रेट बनाने से पहले ही एक्सीडेंट पे मेरा मौत हो गया, मैं एग्जिस्ट करती ही नहीं हूं, अब मैं ऊपर जा चुकी हूँ. then is the contract is valid anymore? The answer is no. कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया गया था, जब मैं ही जिंदा नहीं हूं तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल करेगा कौन? कोई नहीं है. घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, जब घर ही नहीं रहा जिसको बेचा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? सो दिस थिंग इंडिकेट्स द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट जहां पे कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है. दूसरा सिचुएशन आता है when the contract becomes voidable in nature. Voidable means contract is void in nature. Contract is not legal in nature. Contract का आधा लीगलिटी है, आधा इलीगलिटी है, या सिर्फ मान लीजिए पूरा इलीगलिटी है. बट यहाँ पे दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज दैट दे वांट टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट.
दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। समझ रहे? So when it comes to the discussion of the parties to decide something about the continuation or non-continuation of the contract, then that is called the voidable contract as per se. Okay, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए you are a person who is just staying my near my house. Okay, तो आप मेरे को बहुत पहले से जानते हैं। ओके, आप मेरा आप जानते हैं कि मान लीजिए मैं बहुत बहुत रिच इंसान हूँ, मेरे पास बहुत सारा जमीन है। तो आपको पता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारा पैसा है, जमीन है। तो आपने मेरे को क्या किया, आके बोला कि मैम देखिए आपका वो वाला जो जमीन है वो मैं खरीदना चाहती हूँ, ऐसा ऐसा करके। मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो अपना जमीन बेचना चाहती ही नहीं हूँ। तो आपने क्या किया, मेरा ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि मैम देखिए वहां पे ऐसा है वैसा है, वहां पे ये प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आप वो जमीन बेच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। सो यू जस्ट ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी, जिसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप मेरे को ना गलत तरीके से मेरे दिमाग में बात भर भर के मेरे को इन्फ्लुएंस कर लिए वो जमीन बेचने के लिए। आपने मेरे को झूठ बोला है, आपने जो भी सारा चीज मेरे को बता के जमीन मेरे से खरीदना चाहते हैं आप। ओके, वो भी कम पैसे से। तो आप मेरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि गलत तरीके से आप मेरे दिमाग पे गलत चीज भर रहे हैं, जिसके वजह से मैं इन्फ्लुएंस हो गई और मैं मान गई ठीक है भाई मैं आपको जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सेल माई लैंड टू यू। तो वहां पे क्या हुआ, आप और मेरे बीच में एग्रीमेंट बन गया, ठीक है भाई आप मैं आपको मेरा जमीन बेचूंगी। बट मान लीजिए जमीन का जो असली प्राइस है, रियल प्राइस है, वो 20 लाख रुपया है। बट आप तो मेरा ब्रेन वॉश कर चुके हैं, आप मेरे को किसी भी तरह से गलत तरीके से मेरे को इन्फ्लुएंस कर दिए हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब आप मेरे को ये बोल रहे हैं कि बहन देखिए अब 20 लाख का जमीन है, मैं तो इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी, आप मेरे को 15 लाख पे वो जमीन दे दीजिए। मैंने बोला कि ठीक है मैं दे दूंगी, बिकॉज पहले से बता रही हूँ यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि इलीगल है, जो कि अनऑथेंटिकेट है, आप मेरा ब्रेन वॉश कर चुके हैं। एंड उसके वजह से आई एग्री टू सेल द लैंड ऑफ 20 लाख ऑफ द रुपीज एट द अमाउंट ऑफ 15 लाख। 20 लाख का जमीन मैं 15 लाख में बेचने के लिए तैयार हो गई। मान लीजिए बेच भी दिया, आपने जमीन ले लिया। जमीन बेचने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे को जब होश आया, मेरे को जब अंदाज आया, मेरे को जब समझ आया, मेरा दिमाग में घुसा, अरे यार यहाँ पे तो मेरा 5 लाख रुपए डूब गया। यहाँ पे तो उस इंसान को मेरे से 20 लाख से जमीन लेना चाहिए, तो यहाँ पे तो मेरा कट गया भाई। मेरे तो मैंने ये बंदे ने मेरे को गलत तरीके से झूठ बोल के इन्फ्लुएंस किया है, जिसके वजह से मैंने 20 लाख का जमीन को 15 लाख में इसको बेच दिया। जब मेरे को उस चीज का रियलाइज हुआ तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाके आपके पास थाने में कंप्लेन करती हूँ कि देखिए सर, दिस पर्सन, सॉरी, सो व्हाट आई एम डूइंग व्हेन आई एम गेटिंग दिस। तो मेरे को गुस्सा आता है आपके, यार मेरा 20 लाख का जमीन था, आपने मेरे को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके मेरा 20 लाख का जमीन 15 लाख से मेरे को ले लिया। मेरे को तो जमीन बेचना ही नहीं था, तो मेरे अंदर ये जो है ना गिल्ट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, पुलिस पे जाके कंप्लेन कर दिया कि देखो इस इंसान ने झूठ बोल के गलत तरीके से मेरे से कम पैसे में जमीन हड़प लिया है। तो यहाँ पे आप और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या वो इलीगल है? नहीं है, बिकॉज दिस इज द क्लियर कॉन्ट्रैक्ट। आपने मेरे को पैसा दिया है, मैंने आपको जमीन बेचा है, जमीन का लीगलिटी भी, और जमीन खरीदने का भी है कि जमीन मैंने अपनी इच्छा से नहीं बेची हूँ। आपका गलत इन्फ्लुएंस में आके मैं कम पैसे में अपना जमीन बेचती हूँ। मैटर बस इतनी सी है। सो हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable इन नेचर। दिस इज अप टू मी। अगर मैं चाहूं तो वो जमीन आपसे वापस ले सकती हूँ। पुलिस कंप्लेन करूंगी, पुलिस बोलेगा हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज द यूज ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगर मैं चाहूं, मेरे पास दो ऑप्शन है,
इफ आई वांट आई कैन क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट, मैं अपना जमीन वापस ले लूंगी, आपको आपका 15 लाख रुपए वापस दे दूंगी, वो कर सकती हूँ। नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं आपसे 1-2 लाख एक्स्ट्रा लेके सेटलमेंट कर सकती हूँ, या फिर मैं आपको ये बोल सकूं छोड़ो यार गरीब इंसान है, 15 लाख पे ले गया तो क्या हो गया, आई एग्री कि चलो पैसा तो मेरे को मिल गए, रहने दो। इफ आई वांट टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट आई कैन कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज अप टू मी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, बट कॉन्ट्रैक्ट का तरीका गलत है, सो इट इज अप टू मी दैट आई वांट टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट और आई वांट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज कॉल्ड द voidable contract in nature. Okay, समझ में आ गया? So what is void and what is voidable contract? We have understood this. We got the difference between this, and in the next class onward, we are going to continue from the next portion itself. So thank you for today. This is all, guys. Take care. Bye bye.